الحمد للہ وحدہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک اہم سوال لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً عقیدے کی اصلاح کے لیے بہت یہ ضروری تھا، اور سوال کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں جواب بھی پیش کرتے ہیں۔ عموماً اس وقت عوام الناس کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ انتہائی زیادہ رائج کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ بعض علماء نے اس کی نفی کی ہے، جس نفی کی بنا پر یہ سوال جو ہے معاشرے میں گردش کرتا ہے۔ سوال کیا؟ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اتنا اہم سوال ہے، یقیناً عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ اس کا جو ہے وہ واسطہ ہے، تو اس کی تحقیق جو ہے وہ لے کر ہم مختصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس سوال کے جواب کی۔ اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن بعض معتزلہ جو فرقہ ہے، معتزلین جو ہے اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ جنات جو ہے انسان کے جسم میں داخل ہوگا۔ معنی یہ جو ہے جنات انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا، اس چیز کو ماننے کا جو شیوا ہے، نہ ماننے کا جو شیوا ہے، یہ معتزلین کا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ آگے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے کہ سود خور قیامت کے دن جو ہے وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کسی شیطان نے جو ہے ان کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو اور دیوانہ بنا دیا ہو۔ قیامت کے دن سود کھانے والے لوگ جو ہے وہ اس طرح کھڑے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو الذی یتخبطہ فیصرعہ من المس، جس کو شیطان خبتی بنا دے، یعنی اسے چھو کر آسیب زدہ کر دے۔ اس آیت کی تفسیر وہ کر رہے ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے۔ حافظ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ یہ معنی ہے الذی یتخبطہ ای یسرعہ الشیطان ومعناہ ان آکل الربا یبعث یوم القیامت کمثل المسروع۔ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے، شیطان جس کو خبتی بنا دے، یعنی جسے آسیب زدہ کر دے، اس آیت کا جو ہے وہ یہ معنی ہے کہ سود کھانے والا قیامت کے روز ایسے کھڑا ہوگا جسے شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، آسیب زدہ کر دیا ہو۔ آسیب زدہ جیسے ہوتا ہے جنات والا شخص جس سے ہوتا ہے، جس کے اوپر جن سوار ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن سود کھانے والے لوگ بھی اس طرح جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر جو شروع میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں یہ فرماتے ہیں
अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फी हादिहिल आयति दलीलुन अला फसाद इनकारी मन अनकर सरा मिन जिहतिल जिन्न व ज़अम अन्नहु मिन फ़िअल तबाई व अन्न शैतान ला यसलुकु फिल इंसानि व ला यकूनु मिन्हु मसन। इस आयत में कहते हैं कि इस बात का रद्द है जो आसिफ ज़िदा का इनकार करते हैं, यानी आसिफ ज़िदगी का इनकार करते हैं, उनका इस आयत में रद्द है। और उसे आसिफ ज़िदा जो शख्स होता है उसे तबीयत की खराबी करार देते हैं। शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं होता, उनका यह तसव्वुर होता है, यह ख्याल होता है, और नहीं उसे छू कर दीवाना बना सकता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि ये आयत उन लोगों का रद्द है जो आसिफ ज़दा यानी जन्नात वाले शख्स को, जिस पर जिन सवार हैं, जिसके जिस्म में जिन दाखिल होते हैं, उसको सिर्फ एक बीमारी करार देते हैं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसके हवाले से फरमाते हैं कि ऐ ला यक़ूमून मिन क़ुबूरिहिम यौमल क़ियामत इल्ला कमा यक़ूमुल मसरूअ हाल सरइही व तख़ब्बुतश शैतानी लहू, यानी सूदखोर क़यामत के रोज़ जो है अपने कब्रों से इस तरह खड़े होंगे जैसे किसी आसिफ ज़िदा ने उनको छू लिया हो, मदहोशी के आलम में उनको कर दिया हो। ऐसे क़यामत के दिन जो हैं वो खड़े होंगे, जैसे जन्नात जो है लोगों को दीवाना और मजनून बना देते हैं। इस तरह आगे आते हैं हदीस की तरफ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के पैगम्बर से एक रिवायत इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि इदा नूदिया लिस्सलाति अदबरा शैतान वलहु ज़ुरातुन हत्ता ला यस्मअ तअज़ीन फ़इज़ा क़दन निदा अक़बल। इस हदीस के अंदर फरमाया कि जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान पाद मारता हुआ इतनी दूर भाग जाता है जहां से उसे अज़ान सुनाई न दे। जब अज़ान मुकम्मल होती है तो वो वापस लौट कर आता है। सही बुखारी की ये हदीस है। इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि हादा दलीलुन अला अन्ना रजुल इदा अहस्स बिल गूल औ अशरफ अलल मसरूअ थुम्मा अज़्ज़न ज़हब अन्हु मा यजिदु मिन ज़ालिक। ये हदीस दलील है इस बात की कि जब कोई आदमी जिन भूत महसूस करे या किसी ऐसे शख्स के करीब हो जिसमें दाखिल हो, जिन दाखिल हो गया हो जिसमें, फिर वो उसके करीब अजान दे तो जिन भूत का असर जाता रहता है। ये एक उन्होंने दम का तरीका भी इसके अंदर बताया है कि अजान के जरिए भी आप उसका इलाज कर सकते हो। एक तो इस बात से इस हदीस की तफसीर के अंदर इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह ये बात भी बता रहे हैं कि जिन इंसान के जिस्म में दाखिल होगा फिर उसका इलाज भी बता रहे हैं कि इलाज किस तरह आप उसका कर सकते हो। मुस्तखरज अबू अवाना के अंदर ये जो है मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं 977 सफ़ा के अंदर। अब सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, आइए उसकी तरफ भी हम आपको लेके चलते हैं। बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे नमाज में ऐसी हालत का सामना होता है कि मुझे ये भी मालूम नहीं होता कि मैंने कितनी नमाज पढ़ी है। आप फरमाया कि ये
जो है ये जिन है जो आपकी, ये जिन है आपके करीब, आप मेरे करीब आइए। अल्लाह के रसूल सही सहाबी को अपने करीब करते हैं। आगे अल्फाज सुने, सहाबी कहते हैं कि मैं करीब हुआ और अपने पाँव के बल बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा, मेरे मुंह में लुआब डाला, नेज़ फरमाया अल्लाह के दुश्मन निकल जा। ऐसा 3 बार किया। मुझे फरमाया अपने अमल को जारी रखें, अल्लाह की कसम। उसके बाद सहाबी कहते हैं उसके बाद कभी जिन मेरे बदन में दाखिल नहीं हुआ। ये सुनन माजा के अंदर मौजूद है और मुस्नद रुयानी के अंदर भी मौजूद है। सनद इसकी बिल्कुल सही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने वाज़ेह दलील है, सहाबी खुद बता रहे हैं। और आगे आते हैं मुहद्दिस नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो है फरमाते हैं कि फिल हदीस दलालतुन सरीहतुन अला अन्न शैतान क़द यतलब्बसुल इंसान व यदखुलु फीही वलौ कान मुअमिनन सालिहा व फी ज़ालिका अहादीसुन कसीरतुन। ये हदीस कहते हैं कि वाज़ेह दलील है कि कभी कभी जिन इंसान से चुमड़ जाता है और उस जिन उसमें दाखिल हो जाता है, अगर चाहे सालिह और मोमिन ही क्यों ना हो। उस बारे में कई अहादीस कहते हैं कि वारद हुई हैं, सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर ये बात मौजूद है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आते हैं, उनसे पूछा गया कि इन कौमन यक़ूलून इन्नल जिन्न ला तदखुलु फी बदनिल इंस फ़क़ाल या बुनय्या यक्दिबून हुवा ला यतकल्लम अला लिसानिही। कहते हैं कि बाद लोगों का कहना है, अब बेटा अपने बाप से सवाल करता है कि बाद लोगों का कहना है कि जिन इंसान के बदल में दाखिल नहीं होता। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटा ये झूठे हैं, ये झूठे हैं। जिन तो इंसान की जबान से बोलता है। माना ये जो लोग जिनका इंसान के जिस्म में दाखिले का इनकार करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमा रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं जो इस चीज़ का इनकार करते हैं। क्यों कि जिन तो इंसान की ज़बान से बोलता है, माना इतनी ताकत रखता है वो इंसान के ज़बान से भी बोल सकता है। मजमूल फतावा के अंदर ये बात मौजूद है। आगे आते हैं शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वजूदुल जिन्न साबितुम बि किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही वत्तिफाक़ सलफिल उम्मति व अइम्मतिहा व कज़ालिका दुखूलुल जिन्नि फी बदनिल इंसानि साबितुम बिल इत्तिफाक़ अइम्मति अहली सुन्नति वल जमाअह। जिन्नों का वजूद जो है किताब और सुन्नत से साबित है, उस पर असलाफ उम्मत और आइम्मा अहले सुन्नत का इजमा है। इसी तरह आइम्मा अहले सुन्नत वल जमाअत का इत्तिफाक भी है कि जिन इंसानी बदन में दाखिल हो सकता है। आगे फरमाते हैं कि आइम्मा मुस्लिमीन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आसिफ ज़दा वगैरह के बदन में जिन के दाखिल होने का इनकार करे। यानी जिन के दाखिल होने का आइम्मा मुस्लिमीन में से कोई ऐसा नहीं है जो इनकार करे। जिसने उसका इनकार किया और ये दावा किया कि शरीयत उसकी तकजीब करती है, तो उसने शरीयत पर झूठ बोला है। तो कोई शरई दलील ऐसी नहीं है जो आसिफ जिंदगी की नफी करती हो। फता वल कुबरा के अंदर दिल नंबर 3 सफ़ा नंबर 13 पर ये बात मौजूद है। इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात
को इरशाद फरमाया है। आगे वज़ीर फरमाते हैं कि ये जिन इंसान का दाखिल होना इंसान में ऐसा मामला है जिसका हमने और दीगर लोगों ने बकसरत के साथ इसका कई मरतबा मुशाहिदा किया है। हमारे पास इस बारे में ऐसे हिस्सी मालूमात हैं, यानी ऐसी पक्की मालूमात हैं जो मुशाहिदा और नकल पर मुश्तमिल हैं, उनको नकल किया जा सकता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अहले सुन्नत का मजहब जिक्र करते हुए बयान करते हैं कि यजूज़ु अन यदखुलल जिन्न फिन्नास, कहते हैं कि जिन इंसान के बदन में दाखिल हो सकता है। अल्लामा सुरखसी रहमतुल्लाह हनफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो लिखते हैं कि इस हदीस में मज़हब अहले सुन्नत वल जमात की दलील, पीछे जो हमने बयान की हदीस, उस हदीस के अंदर लिखते हैं कि ये हदीस जो है ये दलील है, अहले सुन्नत वल जमात की दलील है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, लेकिन अहले ज़ेग उसका इनकार करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, उलमा अहनाफ भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जिन्नात इंसान के बदन में दाखिल हो सकते हैं। आइए हम आपको अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी लेके चलते हैं कि वो इस हवाले से क्या इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं आईनी शाहिद हूँ, हमारे पास शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह आसिफ ज़िदा की तरफ किसी शख्स को भेजते जो उसमें मौजूद जिन से मुखातिब होता और कहता कि तुझे शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि निकल जा, तेरे लिए इसमें ठहरना जायज़ नहीं है, तो आसिफ ज़िदा शख्स ठीक हो जाता। बसा औक़ात अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह खुद जिन से मुखातिब होते, अगर जिन सरकश होता तो उसे मार कर बाहर निकाल देते, आसिफ ज़दा शख्स ठीक हो जाता था, उसे कोई तकलीफ महसूस न होती। हमारे समेत कई दूसरे लोगों ने भी कई मतबा शेख रहमतुल्लाह अलैह के इस तरह के वाक़यात देखे हैं। अब खुलासा कलाम ये है कि इस तरह आसिफ ज़िदगी और उसका इलाज का इनकार वही कर सकता है जिसमें इल्म, अकल और शऊर की कमी हो। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग जिन्नात इंसान के बदन में दाखिल होने का इनकार करते हैं, वो जो है इस इल्म की तरफ आए जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, उस अकीदा को अपनाएं और अपने इस मौक़िफ़ की जो है वो इस्लाह करें इल्म के ज़रिए। अहले सुन्नत वल जमात ने जो हमें बताया है। आगे आते हैं, उलमाए अहनाफ ने भी क्या लिखा है। उलमाए अहनाफ की तरफ भी आते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि आसिफ ज़िदा इंसान हालत आसिफ में अपनी बीवी को अगर तलाक देता है और तलाक वाक़े नहीं होती। और आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि अल मसरूह इज़ा अफ़ाक़ अलैहि अल-वुज़ू, यानी आसिफ ज़िदा को जब अफ़ाक़ा हो तो उस पर वुज़ू है। अब ये दलाइल जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इसके साथ साथ हम उन तमाम अहबाब से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि इन दलाइल के सुनने से पहले जिनका ये अकीदा है कि जन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते हैं, दलाइल सुनने के बाद अहले सुन्नत वल जमात के इस अकीदे को अपनाएं कि जन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। फिर अहले सुन्नत वल जमात ने उसके दाखिल होने के सबूत भी पेश किए हैं और फिर इलाज भी पेश किया है, तो हमें उन सबूतों को तस्लीम करना चाहिए और जो इलाज का तरीका उन्होंने किया है उसको अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।